Hi guys, welcome to my channel again, and this is the part 3 of the series of McLeodganj and Dharamshala, and आज day 3 है, so I'm starting from McLeodganj to go to धर्मशाला. So बात ये है कि मैक्लोडगंज से धर्मशाला जाने के लिए टैक्सीज तो बहुत थी, बट द फेयर वाज सो हाई, लाइक आपको 500 to 600 bucks तो पे करने ही पड़ेंगे. So I decided to do the hitchhiking for the very first time. थोड़ी सी अपनी हेजिटेशन को साइड में रख के मैंने एक अंकल से पूछा जो वहाँ के लोकल थे कि आप वो उस तरफ जा रहे थे एक्चुअली ऑन एक्टिवा. तो मैंने पूछा कि क्या आप मुझे धर्मशाला तक ड्रॉप कर देंगे. वो कहता व्हाई नॉट, ही वाज सो हैप्पी टू हेल्प मी. तो बस मैं उनके पीछे एक्टिवा में बैठी और फिर वहाँ से वी स्टार्टेड द जर्नी टू गो टू धर्मशाला. और इन बिटवीन हमने बहुत सारी बातें की, मैंने अंकल से बहुत कुछ पूछा. तो मैं आपको उनका छोटा सा एक वो भी दिखाना चाहती हूँ कि वो मेरे से क्या शेयर कर रहे थे, क्या बोल रहे थे वो मेरे को. देखिए आप. नमस्ते सबको. ये है मैं धर्मशाला बैठा हूँ. आई वॉज बोर्न इन टिबेट एंड आई वॉज एस्केप फ्रॉम टिबेट इन 92 and I reached here by the grace of Dalai Lama, and my main purpose to escape from Tibet is to visit Dalai Lama and get blessing from him. Right now I'm staying in Dharamshala, McLeodganj, and we have lost our country, and our country occupied Chinese government in 59, and at that time Dalai Lama and some few Tibetans escaped from Tibet, and right now we are here with the Dalai Lama. And since from 59 till today, Chinese occupied Tibet, and there is no human right, there is no religion right, there is nothing right in Tibet. And still my parents are there in Tibet, and they doesn't have anything contact since last 25 years. I didn't have any contact with them. Still I'm alone and I need to be contact with them, but the Chinese control everything. We cannot do anything. So world people need help, and we need a support, as well as Indian government is giving. And so much thanks for Indian government and people of India. And we are grateful to having a very good place to stay here. Right. And we love to stay with the Indian, and we love to be with the Indian, but we need to be fight for our country's struggle, and this is the main time, and the world know what the China did in 2020 and the COVID-19, and it's met by Chinese government, and they separate the world, and no world people are suffering from the COVID-19. We need support, and China is literally control the all world, and they need only economic power. They doesn't need humanities, they doesn't need peace, they doesn't need anything. They only need economic power. So world people need to please know about Chinese government rule and what the Chinese community is doing in China. Thank you so much. Okay, anything you would like to tell about 14th Dalai Lama? Yeah, 14th Dalai Lama was born in 1935 in Tibet. Okay. And he is right now 14th Dalai Lama. Okay. Yeah. And it means he is first, second, third. He is the 13th, 14th Dalai Lama reincarnation. Right now he is 14, and he is 86 years old. He is the Buddhist spiritual leader of Tibet as well as Buddhist. And he is right now the world people know about him is his compassion, his peace, and his loving harmony to the world. And world people need to be support the Dalai Lama's what he did and what he want to be do. And the Dalai Lama's mission to be complete is to raise Tibet issue in front of the world peace, the world people, and we need to be help from the world people. Thank you. Yeah. And the Dalai Lama is one of the greatest leader of Buddhism, and he giving teachings to all the world places where, and right now his main focus about is the environment, world environment, global economic powers, and all those things are he's looking. And he felt that all human need happy, and the same as Chinese. And but Chinese, he always tell that Chinese people are not good. Their rules, community rules is bad. So Chinese Dalai Lama never opposes Chinese people. There are so many millions of Chinese that believe Dalai Lama because they are Buddhism. Okay. And thank you so much, sir, for the it was my first hitchhiking experience. Okay. And thanks a lot. Thanks a lot for the information. Okay. And bye.
तो आपने देखा कि अंकल ने अपने थॉट्स शेयर करे, लाइक वो तिब्बत से बिलोंग करते हैं, तो फिर उन्होंने थोड़ा चाइना के बारे में अपने थॉट्स शेयर करे, कोविड के रिगार्डिंग अपने थॉट्स शेयर करे, और जब हम रास्ते में आ रहे थे तो वो अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे थे कि वो कहाँ कहाँ घूमे। तो मुझे अंकल से बहुत सीखने को मिला सिर्फ इन 5 to 10 मिनट्स की जर्नी में ही। तो हाँ, आप मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप हिच हाइकिंग वगैरह अगर करना चाहते हैं यहाँ पे, और अगर आप अकेले सोलो लाइक गर्ल भी हैं यहाँ पे, तो इतना कुछ अनसेफ की बात नहीं है, बिकॉज हियर पीपल आर वेरी हेल्पफुल, बहुत ही स्वीट नेचर के हैं, बहुत ही हम्बल नेचर के हैं। तो मेरा फर्स्ट हिच हाइकिंग एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा था। और इसके बाद अब मैं थोड़ा सा धर्मशाला में प्लेसेस को एक्सप्लोर करूँगी। और बात ये है कि धर्मशाला में मोस्टली प्लेसेस हमारे यहाँ पे क्लोज थे, लाइक यहाँ पे जो हमारा क्रिकेट स्टेडियम था वो बंद था, और भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को वैसे तो नहीं है। बट हाँ, आई विल शो यू कि आप कहाँ, अगर धर्मशाला में आपने कहीं घूमने जाना तो आप कहाँ जा सकते हैं। सो धर्मशाला में मेन जो हमारे प्लेसेस है घूमने के लिए, उसकी मैं आपको ये इमेज दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये इन जगह पे आप धर्मशाला में जा सकते हैं अगर आप यहाँ पे कुछ देखना चाहते हैं तो मेरी फर्स्ट लोकेशन थी वो थी द वॉर ऑफ मेमोरियल। वॉर ऑफ मेमोरियल इज़ लाइक कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोल्जर्स जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं हमारे मदरलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इट इज़ लोकेटेड एट द एंट्री पॉइंट ऑफ धर्मशाला टाउन। सबसे पहले अगर आप धर्मशाला एंटर करेंगे तो आप वॉर ऑफ मेमोरियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे आप नेचर एंजॉय कीजिए, यहाँ थोड़ी देर बैठिए। मैंने भी यहाँ थोड़ी देर रेस्ट किया था। तो ये लोकेशन एक्सप्लोर करने के बाद मैं यहाँ से स्टेडियम भी गई थी। स्टेडियम बंद था, मुझे पता था ऑलरेडी। तो यहाँ की मोनेस्ट्री, स्टेडियम, बाकी सब बंद है। और तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ये एक्सप्लोर किया था। उसके बाद मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने थोड़ा आई वाज स्टार्टेड सर्चिंग आउट कि मैं कहाँ पे कुछ खाऊं। तो मुझे एक लोकेशन मिली थी, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। Guys, if you want to eat something or take a break fresh होने के लिए in Dharamshala, so you can come to this point. This is called Center City Point. This restaurant is so pretty, so you can come here. सो ये यहाँ का enjoy फेमस स्पॉट है the खाने good पीने के लिए, जो आप आ सकते हैं यहाँ पे और अपना फेवरेट मील एंजॉय कर सकते हैं विद ब्यूटीफुल व्यू। गाइस, धर्मशाला अपने आप में ही बहुत सुंदर है। इनफैक्ट मुझे मैक्लोडगंज से ज़्यादा सुंदर धर्मशाला लगा। आप देखिए, रोड्स इतनी क्लीन है, व्यूज़ इतने सुंदर है, इतनी ठंडी हवा चलती है, इतना मज़ा आता है ना। तो मैं तो यहाँ की रोड जितनी भी थी, मैंने कोई ऑटो कैब कुछ नहीं लिया। अब मुझे यहाँ से बस स्टैंड तक जाना था धर्मशाला के, मेरी शाम की बस थी। तो मैंने वॉक करते करते ही सारा डिस्टेंस कवर किया और धर्मशाला को देखते हुए एंजॉय किया। तो वॉक करते करते पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। तो उसके बाद जब मैं अपने बस स्टैंड पे पहुंची तो कुछ 15-20 मिनट थे बस आने के लिए। तो इसके साथ ही एक मॉल है मैक्सिमा, जहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपको बाहर बहुत ठंड लग रही है, आप मॉल के अंदर जा सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ खाना है, आप खाइए, आपने रेस्ट करना है, बैठना है, बैठिए। और यहाँ का सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि अगर आपको अपना लगेज भी यहाँ पे रखना है ना, तो आप रख सकते। ये देखिए कि जिन्होंने भी बस बोर्ड करनी है ना, वो सब अपना लगेज यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे एक नंबर से मार्क कर देते हैं आपके लगेज को। तो यहाँ से ना गुम होने का कोई टेंशन है आपको। अपना सामान यहाँ पे आराम से रखिए और उसके बाद पूरे मॉल में आप एंजॉय कीजिए जब तक आपकी बस का टाइम नहीं हो जाता। और बाहर रुकने से अच्छा है ठंड में आप यहाँ पे रात के टाइम अंदर रुक सकते हैं। तो गर्ल्स की सेफ्टी के लिए भी ये बेस्ट रह गया और आप अपने ठंड से भी बच गए। So this was the best point of this mall. So अब टाइम आ गया था धर्मशाला को भी बाय बोलने का और बस अब वापस जाना पड़ेगा और मैं अपनी बस बोर्ड कर चुकी हूँ ऑन द वे टू दिल्ली के लिए। बट ओवरऑल इट वाज सो गुड एक्सपीरियंस दैट मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि धर्मशाला थ्रू इन मैक्लोडगंज का मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप इतना अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। और इसके बाद
बस ये मैं हर लड़की को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके अपनी सेफ्टी के साथ आप कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। बस ऑल यू नीड इज़ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एंड थोड़ी सी गुड मैनेजमेंट, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये पूरे जो तीनों पार्ट थे वो ख़त्म हो चुके हैं इस सीरीज़ के, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, त्रिउंड के। और इसके बाद अब कोई और डेस्टिनेशन के जब मैं ट्रैवल करूँगी नेक्स्ट, उसके व्लॉग्स आएंगे। तो आप बस मेरे साथ कनेक्ट रहिए इस चैनल पे। मेरा थोड़ा सा भी काम आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड बस टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ट्रैवल कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।